cash flow statement, the last chapter, and this is also a tool of analysis of financial statement. Tool. Tool means this will help you to analyze financial statement in a more better way in terms of cash. And in terms of cash, inflow and outflow of cash. Inflow means cash comes to the business. Outflow means cash is being used. Cash is being used. In whole chapter, you have to focus on three activities of the business. That is operating activity, investing activity, and financing activity. These three activities, every business, in deals in cash. Either cash comes in operating activities, investing activities also, and financing activities also, or the cash goes out of the business. Why we are preparing this cash flow statement? It is a statement, okay? It is not an account. It will be a statement. तो उसमें आपको वर्टिकली बनाना है. सबसे पहले आपको जो है प्रॉफिट दिया होगा. Then you have to deal with the activities which is operating activity first. Then you have to see investing में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया. Then you have to see in the financing how much cash came in to the business and how much cash is used by the business. Finally, पूरे साल में what is the position of cash in or out, और आपको उसको कंपेयर करना होगा, प्लस या माइनस करना होगा किससे? कैश इन द बिगिनिंग से. साल के स्टार्टिंग में आपके पास 1 लाख थे, पूरे साल में आपके पास 50,000 और आए, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000. So that whole statement, when you will prepare cash flow statement, very easily you can check your answer also at last, क्योंकि cash at the beginning and cash at the end is already given in the question. Cash in the beginning and cash at the end is given, और cash during the year is calculated by us. तो आपको पता चल जाएगा बिगिनिंग का कैश दिया है, बिगिनिंग का कैश दिया था 5 लाख, एंड का कैश दिया है कितना? 3 लाख. तो आपका आंसर 2 लाख आना चाहिए, वो भी किसमें? माइनस में. दैट कैश वाज यूज्ड. सो 5 लाख कैश था, 2 लाख रिमेन्स बिकॉज 3 लाख इज या 2 लाख इज यूज्ड. सो दैट वे यू विल बी एबल टू find out also at the end whether the cash we calculated, inflow or outflow, is correct or not. Also, very clearly you should be able to differentiate between operating activity, investing and financing. Why do we prepare this? We prepare this for making long-term decisions, for making provisions for different things like provision for taxation, provision for dividends, provision for depreciation, provision for doubtful debts, reserves. आपको अगर अपने कैश फ्लो के बारे में पता होगा तभी तो आप जो है कुछ इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बिकॉज आपका जो ईयरली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है उसमें आपको पता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी we will be having inflow of cash. Lot of cash will be coming to the business. Why? Because we are planning to say issue shares, or we are planning to issue debentures in the month of you say September or October or November. तो हाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में काफी हमारे पास कैश आ जाएगा, ये तो मतलब हुआ. So you can plan to invest that cash in some other things. Investing activity, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यही होती है. तो आप इसलिए इन्वेस्ट करने की सोच पा रहे हैं बिकॉज यू नो दैट यू विल बी हैविंग सफिशिएंट. फिर आपको पता है कि अप्रैल में, जून में या अप्रैल में या मई में आपको जो है अपने डिवेंचर्स रिडीम करने, तो उसके उस टाइम पे आपके पास कैश होना चाहिए ना बहुत सारा, इसके लिए पैसे वापस करने के लिए. दिस कैश फ्लो पोजीशन, आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, बजटिंग करते हैं, अपनी बजट बनाते हैं, तो वो कैसे बनता है? आपको पता होता है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ कैश इन योर हेड. तभी तो आप कहते हैं यहाँ इतने पैसे लगा दूंगा, वहां इतने, उसको इतने वापस कर दूंगा, और आई विल परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी,
I will invest on building. I will also purchase shares of that particular firm or company. How? Because you know about the position of cash in your hand. You know the position of cash is not good. तो आप ये इन्वेस्टिंग की तो सोचेंगे नहीं, तब आप फाइनेंसिंग की सोचेंगे, कहां से मैं जो है फाइनेंस रेज करूं, sources of finance. Then you will think of issuing shares, you will think of issuing debentures, bonds, है ना, ताकि आपके पास पैसे आए. So that means to say this cash flow statement gives you lot of insights, that gives you lot of inputs, gives you lot of points to think about, and where to invest money, from where to raise money, right? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, एंड डेली एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, दैट कैन बी पेड रेगुलरली और नॉट. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, whether the interest payment can be made on time or not, regular payments to our creditors can be made or not. छोटा मोटा पैसा जो आता है रेगुलर पे, डेटर्स पे करते हैं हमें, हमारे बिल रिसीवेबल्स से हमारे पास पैसा आता है. शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो हमने पैसा लगाया होता है, इन बिजनेस आपने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मनी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, जिनसे आप पैसा जो है जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके उसमें इंटरेस्ट लेके फटाफट तो आपका जमा भी होता रहता है और इट ऑल्सो कम्स बैक. ऑल दिस, सब में कैश इन्वॉल्व है. वी विल स्टडी मच अबाउट इनफ्लो ऑफ कैश, एंड हर एक में आपको सिर्फ फोकस रखना है पैसे इसमें आ रहे हैं या जा रहे हैं. अगर पैसे आ रहे हैं तो प्लस करते जाइए, और अगर जा रहे हैं तो माइनस. माइनस विल बी अगेन सोन इन द ब्रैकेट. सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. प्रथम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से एक्टिविटीज हो सकती है या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकती है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेट्स टू व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज और व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस डू यू थिंक मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस. यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिंपल ट्रांजैक्शन सोचिए जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो सकती है. वैशाली, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, राइट. These business activities are important. These business activities are important to maintain the earning capacity of the business or to run the business. To maintain the earning capacity of the business and to run the business. ये स्कूल आप देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर स्कूल की कहे तो वो क्या है, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स दोनों है. उसमें आपका बच्चों का आना, पढ़ना, टीचर्स का उनको पढ़ाना. उसके अलावा इसके रिपेयर मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है, अभी सैनिटाइजेशन पे खर्चा हो रहा है बार बार, हर एवरी मंथ और 2 मंथ्स में पूरे ग्राउंड की जो घास वगैरह है उसको काटते हैं, वाइट वॉशिंग होती है, ये सब होता है, छोटे मोटे रिपेयर और वो चलते रहते हैं. जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है वो ये ऐड होता रहता है. क्यों होता है? ताकि स्कूल चलता रहे, ताकि वो जो है समय के साथ जो है वट एवर एडवांसमेंट चाहिए वो उसमें आती रहे, एंड जो इसकी अर्निंग कैपेसिटी वो बनी रहे. पैसा लगाना बंद कर देगा इस पे. डे टू डे रूटीन खर्चे इसके क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द स्कूल जो है, राइट. यही तो है इसमें. अगर ये खर्चे नहीं करेंगे स्कूल मैनेजमेंट, व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट रन, इट विल नॉट अर्न. लेकिन जब हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द स्कूल, टू इंक्रीज, वो आपकी आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिससे कि बिजनेस और बढ़ता है. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि बिजनेस के जो खर्चे हैं, जो पैसा चाहिए उसे, वो कहां कहां से रेज कर सकते हैं. पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहां से स्कूल लेगा, किसी बैंक से लेगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा, किसी और अपने जो ब्रदर सिस्टर इंस्टीट्यूशन है इनके उनसे लेगा. तो
दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। तो डेली रूटीन एक्टिविटीज बिजनेस की जो होंगी उसमें जो खर्चे होंगे या जो इनफ्लो ऑफ कैश होगा वो आपको इसमें कवर करना है, राइट? सिट डाउन। सो अगेन इन डिटेल, operating activities are the main revenue generating activities of an enterprise. As such, they include cash flow from those transactions and events which enter into ascertainment of net profit or loss of the enterprise. Net profit और loss account बनाया था ना आपने, trading and profit and loss account, उसमें जो भी items आते हैं they are of operating nature. जितने भी उसमें आपने expenses देखे थे, कौन कौन से एक्सपेंस थे युवराज सिंह? ऑपरेटिंग एक्टिव, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देयर वर सो मेनी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर वर सो मेनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट आर दे? Wages, direct expenses, factory expenses, production expenses, purchase, carries inward, cartage, जितने भी पावर एक्सपेंसेस थे, कोल, गैस, फ्यूल, पावर, फ्राइट, फैक्ट्री लाइटिंग, राइट? उसके बाद फिर आप इनडायरेक्ट वाले में आ जाइए, जो आपको जो भी याद आते हैं, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन भी उसमें आ रहा था आपको, बिकॉज दीज ऑल आर एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश एक्सपेंसेस हो और दे आर नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading and profit and loss account are to be included in operating. All office expenses, all administrative expenses, all selling and distribution expenses, packaging, selling का, transportation का, audit fees, computer का, इसका उसका, all type of routine expenses, refreshment expenses, establishment expenses, all expenses which are related to trading and profit and loss account will be included in operating activities. ठीक हो गया? Sit down. Operating activities में प्रथम कैश कहां से मिलता है आपको? Cash is received, sit down, from sale of goods and rendering of services. Cash is received from sale of goods and rendering of, आपको कोई बिजनेस होगा, जो भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होगा? सामान बेचते होंगे या कोई सर्विस देते होंगे, पैसे आएंगे नहीं। ये हो गया इनफ्लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें प्लस माइनस लगा लो। प्लस का मतलब कैश आएगा, माइनस का मतलब कैश जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट आइटम क्रिश एंड आर्ची, वहां पर प्लस एंड माइनस यू कैन इंडिकेट इट एज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। और दूसरा receipts and payments. Receipts is inflow of cash, payments are outflow of cash. So first one, cash receipts from sale of goods and rendering of services, plus it is inflow of cash. Number two, cash receipts from royalties, fees, commission and other expenses, other charges, file charges, this and that, no? रॉयल्टी के पैसे आपको मिलते हैं, जैसे आपका, जैसे ये बुक है, जिसने बुक लिखी है ये, he is getting the royalty for it once he has written it and now he is getting it as his asset. रॉयल्टी भी आपकी asset होती है। फीस मिलती है आपको कोई, चाहे वो एंट्रेंस फीस हो, चाहे वो अदर कोई फीस हो, फाइल चार्जेस हो, कमीशन मिलना, ऑल दीज आर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं उससे सबसे पैसे आ रहे हैं, राइट? नंबर नेक्स्ट, कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल. आवर डेटर्स पे अस, आवर डेटर्स पे बैक आवर बिल रिसीवेबल्स. जो उधार में दिया आपने, बिल बनाया जिसमें, वो बिल भी आपको रिसीव होंगे. पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस.
यू विल ऑल्सो परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हियर एंड देयर, उसमें आपका पैसा जाएगा माइनस. ऑल पेमेंट्स मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. All payments refer to outflow of cash, and all receipts refer to inflow of cash. Plus minus inflow of cash, outflow of cash, receipts and payments. Also payment made to our creditors, normal है, normal business activity. This is operating revenue generating activity. These are regular in nature. These are recurring in nature. RECURRING, recurring, occurring again and again, many times in a day even. That is why it is called reoccurring. So combined उसे कहते हैं recurring, RECURRING, recurring activities occurring many times in a day again and again. These are revenue generating activities. These maintain the earning capacity of the business. These activities maintain the earning capacity of the business. इनको आप पहचान सकते हैं इनके नेचर से कि ये बार बार होती है. कोई एक्टिविटी जो बार बार नहीं हो रही है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी. जैसे कि वो फाइनेंसिंग होगी या फिर वो इन्वेस्टिंग होगी. इन्वेस्ट कितने टाइम करते हैं आप पैसा? साल में कभी एक बार, कभी 2 बार. साल में आदमी जो है इन्वेस्ट करता है, मकान बनाता है, इन्वेस्टमेंट है. कभी साल में या 5 साल में, 10 साल में, कई बार तो जिंदगी में 1 या 2 बार वो कोई अपना बड़ा प्लॉट खरीदता है या खरीदता है. इन्वेस्ट करा उसने पैसा. बैंक में पैसा जमा करते हैं फॉर इंटरेस्ट समटाइम्स, ये नहीं कि डेली, फिर तो तुम्हारा बिजनेस ही हो गया. दैट इज डेली 10 बार जाके बैंक में पैसा जमा कर रहा हो तो फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हो. दैट इज योर ऑपरेटिंग, बिकॉज फिर तो इसका मतलब आप बिजनेस करते होंगे, आपका फाइनेंस का काम होगा. भी आप पैसे देते हैं उधार, पैसे उधार देते हैं तो पैसे वापस भी आते हैं. एंड एवरी डे you need to deposit money in the bank or take out money, withdraw money from the bank. So operating activities में please be very clear. सबसे बड़ा इसी का है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. यही एक्टिविटी में ज्यादा आइटम्स है, बाकी में कम है. ऑपरेटिंग में कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है. ठीक है, इसमें तो कम लिखे आपको, बाकी भाई बहुत सारे बता दिए. कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट्स लिखा. अदर पेमेंट्स का मतलब बहुत सारी है उसमें. इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन वगैरह सारा कुछ उसमें आ जाएगा. जो कि कैरेज, फ्राइट, आउटवर्ड जितने हैं वो सारे, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पेमेंट टू एम्प्लॉय जितने भी आप करते हैं, HRA, हाउस रेंट देते हैं उनको, ट्रेवलिंग अलाउंस देते हैं, DNS अलाउंस देते हैं, फूड अलाउंस देते हैं, मेडिकल अलाउंस देते हैं. ऑल दोज विल बी, क्योंकि वो रेगुलर देते हैं. दे आर गिवन रेगुलर सो दैट वो आपके लिए काम करें, सो दैट जो वो काम करें उससे जो है फर्म का प्रॉफिट बढ़े और रेगुलर रहे. दैट इज व्हाई these payments are made and these are regular payments. Cash payment or refunds of income tax unless they can be specifically identified with financing and investing activities. Cash payments इसके लिए जो आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है तो क्या पैसे आएंगे उसमें, और जब आप पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट पाएंगे. नेक्स्ट है आपका एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, वो भी समझ ले. In case of financing companies or enterprises such as bank or mutual fund company, cash outflow and cash inflow arising from purchase of sale of securities will be treated as operating. Right? कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बेचते हैं तो वो आपकी उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी. किनकी? जिनका काम ही किसका है? फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. उनके लिए फाइनेंसिंग, जो हमारे लिए फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो उनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग, क्योंकि उनका काम ही वही है, पैसे देना, लेना, उधार देना और वो कलेक्ट करना. तो दे आर इनटू दैट बिजनेस ओनली. तो वो उनके लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ
इसी में सबसे लास्ट में देखो, इन एडिशन इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज डिविडेंड रिसीव्ड विल बी ऑल्सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। अगर आपको आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप बैंक है, आपका बोर्ड ही वहां पर लगा हुआ है फाइनेंस कंपनी, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को पैसा क्या करते हैं, उधार देते हैं। और अगर उधार देते होंगे तो उनसे इंटरेस्ट मिलता होगा, इंटरेस्ट रिसीव होता होगा। आप जो है कहीं ना कहीं शेयर्स और डिविडेंड वगैरह वो खरीदते होंगे शेयर्स वगैरह, तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता होगा। आई बात समझ में? ये आपके लिए क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सो दीज विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अगर आप फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर अगर आप कहीं पर पैसे जमा करते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ना कि ऑपरेटिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो कई बार एक क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि बताइए इनमें से ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग कहलाएगी, इन्वेस्टिंग कहलाएगी या फाइनेंसिंग, राइट? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ICICI बैंक विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तो आप कहेंगे इट इज ऑपरेटिंग। ये पता होना चाहिए, वेरी गुड पॉइंट इट इज। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें भी पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको पहचानना होगा कि पैसे, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग मींस कंपनी कहीं पर पैसे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, ताकि उससे उसको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले और उसको रिटर्न मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो ऐसी जगह पे जब पैसे लगाती कंपनी, दैट इज नॉट रेगुलर, दैट इज नॉट रूटीन नेचर, हमेशा नहीं हो रहा है, कभी साल में एक बार दो बार, राइट? तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड, और जब जब पैसा आप लगा देते हैं, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑल्सो, दीज आर इरिवर्सिबल डिसीजंस। आपने वेजेस, सैलरी, छोटा मोटा पेमेंट किया, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, नहीं कराना भाई तुमसे काम, मनी वापस। इसमें तो आप ह्यूज अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड, प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, राइट? जब आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, आप वो कर रहे हैं कि हम एक नई बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, आधी बना के आप कह रहे हैं नहीं, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, चलो उसे डिमोलिश कर दो, ह्यूज लॉस विल बी देयर, राइट? इट इज इरिकवरेबल, इट इज ह्यूज लॉस, इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, so they have to be taken after lot of wise thinking, lot of calculations, lot of analysis, lot of feedback. So this type of decisions, they are, कहीं पर लिखा होगा इसमें, mostly related with assets, tangible or intangible. नोट करो कहीं पर, investing activities include the purchase and sale of long term assets such as land, building, plant, machinery, which is not held for resale. These type of assets are not for resale because these are fixed tangible assets. These activities also include the purchase and sale of investment which are not included in cash equivalent. अभी बताएंगे बाद में what are cash equivalents. Cash from investing activities, it discloses the expenditure incurred for resources intended to generate future income and cash flows. ये शो करता है कि कहां कहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है, किस लिए, सो दैट फ्यूचर में आपके पास बहुत सारा पैसा है, प्रॉफिट हो आपको, इसलिए आपने पैसा अभी क्या किया, इन्वेस्ट किया, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, राइट? कैश इनफ्लो होना चाहिए फिर आपके पास बाद में। कहां कहां पैसा लगाते हैं, कैश पेमेंट टू अक्वायर फिक्स्ड असेट एंड इंटेंजिबल असेट, तो ये क्या होगा, कैश आउटफ्लो, इट विल बी आउटफ्लो माइनस कैश रिसिप्ट, जब आप असेट्स वगैरह क्या करेंगे, बेचेंगे। फिक्स्ड असेट्स कई बार हम बेचते हैं जहां पर हमें लगता है कि फायदा होगा इससे हमें, तो हम उसे बेच भी देते हैं, दैट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश। कैश पेमेंट टू अक्वायर शेयर्स, वारंट्स और अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। किसी दूसरी कंपनी के अगर आप क्या खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी पैसा जाएगा। वैसे ही कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, वारंट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जो शेयर वगैरह आपने खरीदे हैं, अगर उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उसे बेच भी देते हैं, आपको फायदा हो रहा है तो आप शेयर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जो आपने खरीदे थे उनको बेचने की बात हो रही है,
कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज, ये भी आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने किसी को एडवांस दे रखा है कैश, या किसी को आपने जो है लोन दे रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग के लिए ये क्या कहलाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपकी फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेस है, ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी ऑपरेटिंग। किसी को उधार देना, एडवांस देना फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है, चुटकियों का रोजमर्रा का काम है उनका, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। कैश रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। अगर आपकी कोई एसेट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है एक्सीडेंट वगैरह में, लॉस बाय डैमेज, लॉस बाय फायर होता है, दुकान मकान में आग लगती है आदमी को, उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है ना, दैट विल आल्सो रिसिप्ट्स। कैश रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपने कहीं पर पैसा, डिविडेंड वहां मिलता है व्हेन वी इन्वेस्ट इन शेयर्स। अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर हम कहीं पैसे इन्वेस्ट करते, डिवेंचर खरीदते, उस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। किसी को लोन दोगे तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेकिन शेयर खरीदेंगे तो उस पर क्या मिलेगा, डिविडेंड। दोनों ही हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चाहे आपको दिन में 5 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि आपका काम इंटरेस्ट से पैसे कमाना नहीं है। आपका बिजनेस तो समथिंग एल्स, यू आर जस्ट, दिस इज योर एक्स्ट्रा इनकम बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड मनी। दो समझ में आ गए होंगे, एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग नॉर्मली रिलेटेड विद व्हाट, assets, purchase and sale of fixed assets and intangible assets also shares, debentures and other instruments, debt instruments of other firms and enterprises, उनको खरीदना और फिर उन्हें बेचना फायदे के लिए, कहीं से इंटरेस्ट डिविडेंड का मिलना, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मींस कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी, कहां से पैसे रेज करती है। पैसे कंपनी रेज करती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए फ्रॉम, नॉर्मली फ्रॉम शेयर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। फर्स्ट टाइम या कंपनी जब फ्रेश इशू करती है शेयर्स, डिबेंचर्स, इन दिस फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या कर रहे हैं हम, पैसे कंपनी कहां से अपनी जरूरत पूरी करेगी, तो कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स, क्या इशू करती है, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आल्सो, प्रेफरेंस शेयर्स आर, वापस भी किया जाता है पैसा, जब वाइंडिंग अप कंपनी होती है पहले उन्हें रिडीम किया जाता है। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। तो पैसे कहां से आते हैं, जब इशू करते हैं, लिखा होगा इसमें, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स क्योंकि बोरोइंग्स होती है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जब आप इशू करते हैं, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कैश पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमारे अपने शेयर्स जो हमने इशू किए, कई बार कंपनी उन्हें वापस भी खरीद लेती है। कंपनी को लगता है अभी मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी कंपनी के उसके लिए रेपुटेशन के लिए कम हो रही है या बहुत टाइम से बढ़ रही है, तो अपने ही शेयर खुद खरीद लेती है वापस। तो वो एक तरीके से क्या है, पैसे जो गए हैं, आउटफ्लो है, वो फाइनेंसिंग है, क्योंकि हम उसको किस लिए करें कि बाद में फिर से उसे बेच के और पैसे कमा लेंगे। Then there is cash repayment of short term और long term borrowing, redemption of debenture, bonds जो हमने वापस करने होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, लोन्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जितने भी बोरोइंग्स होंगी आप उसे जब वापस करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। किस चीज में, बोरोइंग्स का पैसा वापस करने में, डिबेंचर्स का पैसा वापस करने में, दिस विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश। Then interest or interim dividend, payment of preliminary expenses,
interim dividend and previous year proposed dividend. डिविडेंड जो होता है, अगर आपने शेयर्स इशू किए तो हर साल आपको उसमें क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और एक होता है इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड इज proposed and paid in the same year, whereas dividend जो नॉर्मल होता है that is proposed in the current year and paid in the next year. हम कहेंगे कि हम अगले साल इतना डिविडेंड पे करेंगे, तो उसको प्रपोज इस साल करेंगे. प्रपोज करने का मतलब क्या है, we will make a provision for it and an amount will be kept aside. Next year we will pay that. But interim dividend is proposed and declared and paid इन द सेम ईयर. हम इसी साल अचानक दिवाली के टाइम पे कहते हैं कि हम आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं तुरंत. दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, ऑल्सो नोन एज बोनस. अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए इट इज पेड. सो ये 3 एक्टिविटीज जो है आपकी, अगर समझ में आ गई सही से तो क्वेश्चन करने में फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी. आज हमने जितना पढ़ा है ये सब थ्योरेटिकल है. टू understand a numerical well. Understand a numerical well. न्यूमेरिकल करते वक्त अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल में बहुत गलतियां होंगी, बिकॉज उसमें तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सारी एक्टिविटीज के आइटम्स दिए होंगे मिक्स. ये चैप्टर भी बेसिकली पिक एंड ड्रॉप है. पूरे भंडार में से आपको सही चीज उठा के सही जगह पे उसको प्लेस करना है. ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग. राइट. हाँ, मतलब 8 नंबर का चैप्टर है ये. 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 छोटे, एक नंबर में. ठीक हो गया. और 6 नंबर का आपका आएगा प्रैक्टिकल पेपर में. कितने नंबर का हो गया, 14. इतने नंबर का कोई चैप्टर नहीं. रेशियो कितने का हो गया, 10 मार्क्स. 4 नंबर का बोर्ड में, 6 नंबर के प्रैक्टिकल. दोनों मिला के कितने के हो गए, 24 मार्क्स. 80 में से 24 मार्क्स, 30%. सिर्फ ये 2 चैप्टर जो अच्छी तरह कर ले उसके आ सकते हैं. 24 नहीं आया तो 20 आ जाए, तो 80 में से 20 कितने हो गए, 25%. 25% नंबर तो आपको इन 2 चैप्टर से मिल रहे हैं. उसके बाद भी 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा ध्यान नहीं देते इनको, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है. जैसे रेशियो, तो लगता है इतने सारे रेशियो कौन करेगा, कैसे याद होंगे. मत करना तुम भी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. कैश फ्लो, जब आप रेगुलर क्वेश्चन करते हैं इसके, तब जाके आपको जो है इसका बड़ा क्वेश्चन, जैसे शेयर्स है, जैसे एनपीओ है, स्टार्टिंग में ब्लॉक में चलता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स. आफ्टरवर्ड्स जाके क्या होता है, वो कंबाइन. कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, स्टार्टिंग में आपको पहले सारी चीजें सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें, देन जाके कंबाइंडली बिग क्वेश्चन. तो बिग क्वेश्चन ओनली वन कैन डू हु हैज अंडरस्टूड द स्मॉल थिंग्स प्रॉपर्ली. एक और इसमें लास्ट नोट करिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कोई भी चीज जो या तो कैश है खुद या तुरंत कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज है, इट इज नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसके कुछ आइटम है. नंबर 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल. शॉर्ट टर्म एक ही बात है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वही तो 4-5 आपने पढ़ रखी है ना. शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एंड ट्रेड बिल. ट्रेड बिल का मतलब ये होता है बिल रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स मतलब. और आ गया इसमें आपका चेक इन हैंड, चेक इन हैंड और ड्राफ्ट्स, ये भी इसी में आएगा. इसमें 5 वो भी हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको पता होना चाहिए कि दीज आइटम्स
क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कई बार उसमें ढूंढना पड़ता है, इनको आपने किसी और चीज में नहीं लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दीज आर नोन एज। नहीं, तुम्हारा उसका ही होगा। ठीक हो गया? सो दिस इज फॉर टुडे इन अकाउंट्स। बाकी अब हम जो है रिवाइज करेंगे अनदर थिंग्स। नहीं, अनदर थिंग्स इन इसमें ओके। कम बैक टुमारो अगेन सेम टाइम।